Dear students, my name is Dr. Asen Mandal. I'll help you in biology as per as board examination and various competitive examination of medicals including NEET. Without losing our time, we come to the point just now, dear students. We were looking biological classification. In biological classification already, I have seen Protista. Protista already looking here in Protista, I have seen chrysophytes, dinoflagellates, slim molds, and protozoans. All these are we have to see. Dear students, here in Protista, slim molds are developed in slimy mass. Slim molds are developed in slimy mass at the time of their vegetative phase. Phase means reproduction of creepers. Reproduction of creepers. This is called the vegetative phase. Hence, they are called slim molds. Yeah, especially slim molds developed in slimy mass at the time of vegetative phase. Therefore, this is called slim molds. Slim molds are called false fungi. स्लिम मोल्ड्स आर कॉल्ड फॉल्स फंजाई। जिस तरह से आपको आगे मैं बताऊंगा, सीडोपोडिया जो है अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स फेट, एंड कॉमनली नाउडेज इज न्यू टर्म डेवलप्ड सार्कोडाइनिड्स like same systematic position, slim molds called false fungi. Okay, next, slim molds are saprophytic. They are found in dead and decaying organic substances. Dead and decaying organic substances. They are found in especially in decaying twigs and leaves. ट्विग्स का मतलब होता है बच्चों खरपतवार, छोटे छोटा खरपतवार जो जहां स्टोर होता है उसी को बोलते हैं ट्विग्स, एंड लीव्स मींस पत्ते, समझ रहे हो आप। Slim molds are saprophytic. They are found in dead and decaying organic substances, and they found especially in decaying twigs and leaves, engulfing organic materials. जहां सड़ गल जाता है, बदबू आ जाती है, कंटामिनेट हो जाता है, स्मेलिंग आती है, उस स्टेज में ये ज्यादा डेवलप करता है। Therefore, they show phagotrophic. एक phagotrophic, this is the terminology. Phago means division of cell. Division of cell. Trophic means mode of nutrition. Therefore, they show the phagotrophic mode of nutrition. जब ये सेल का डिवीजन होता है तो अपना फूड ऑटोमेटिकली ये प्रिपेयर कर लेता है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन, which may grow and spread several feet, that's called plasmodium. Under suitable condition means favorable condition, आपके अनुकूल, favorable conditions. Suppose that for example in winter season you keep your body warm due to the atmosphere. In winter season you put on woolen cloth to keep your body warm according to adverse condition of the winter season. In summer season you put on light cloth and white in color especially, which gave you cool in nature. तो इस तरह से बच्चों हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अब यहां देखो बच्चों, एक है यहां, अंडर द सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन विच ग्रो एंड स्प्रीड, और जो ग्रो करता है और स्प्रीड मीन्स बढ़ना, डेवलप होना, ग्रो एंड स्प्रीड सेवरल फीट, काफी मात्रा में ये बढ़ जाता है। ये क्रीपर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रीपर्स इन द
form of creeper plants. क्रीपर लट्टी वाला प्लांट्स, लंबा हो जाए, सेवरल फीट, सो इट्स टर्म एज प्लाज्मोडियम, इसलिए इसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है बच्चों। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। अब देखो फेवरेबल कंडीशन में, ये सुटेबल कंडीशन में जो है बच्चों, प्लाज्मोडियम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज का which bears spores at their tip। जब वो टिप जो होता है वो सबसे लास्ट पोर्शन होता है प्लांट्स का या क्रीपर्स का, वहां पर क्या करता है, फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज which bear spores, spore ब्रांच, इस तरह से ब्रांच, एक ब्रांच इधर आया, इधर फिर लगा, इधर लगा, इधर, इस तरह बोलते हैं स्पोर। तो एट द टिप, ब्रांच के क्रीपर के सबसे इन पोर्शन पर, सबसे लास्ट पोर्शन पर, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज फ्रूट्स लगता है, विच बियर स्पोर्स, जहां स्पोर्स चारों तरफ लगता है, आगे बढ़ते जाता है, इस तरह का स्पोर्स बढ़ते जाता है। तो द स्पोर्स पोसेसेस ट्रू वॉल्स, जितना आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा, वो जो है इसके लिए इन्हीं गुड फेथ में ए गुड परपोजेज, ये काम आता है इसका, उसी से ये डेवलप करते रहता है सेवरल ईयर्स। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज विच बियर स्पोर्स एट देयर टिप। वो जब डेवलप करता है तो उसके लाइन पॉइंट ऑफ क्रेपर्स में क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनता है, जिसके बाद क्या है, ये स्पोर्स प्रोसेस जितना बढ़ेगा उतना इसको ग्रोथ होगा, डेवलप होगा, और बहुत सालों तक ये जिंदा रहता है। डेथ तो डेफिनेट है, बट फॉर लॉन्ग आवर दे कैन सर्वाइव। Last one, they are extremely resistant and survive for many years even at adverse condition. The spores dispersed by air current, for example, Physarum. अब देखो बच्चों, they are extremely resistant, ये आगे की ओर बढ़ते जाता है, and survive for many years, बहुत सालों तक। डेथ तो डेफिनेट है, डेथ इज डेफिनेट, बट फॉर लॉन्ग आवर्स, और काफी दिनों तक ये जिंदा रहता है। एंड इवन एडवर्स कंडीशन, इवन एट एडवर्स कंडीशंस, और किसी भी एडवर्स, किसी भी परिस्थिति में ये अपने आप को सरवाइव कर लेता है, रेसिस्टेंट कर लेता है, रेसिस्ट कर लेता है, बचा लेता है, ठीक है। एंड द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड, इस डिस्पर्स का मतलब होता है बच्चों स्प्रीड आउट। स्प्रीड, स्प्रीड का मतलब होता है बढ़ना, ग्रो करना, ग्रो, डेवलप, डेवलप करता है। तो ये आप देखोगे कि क्रेपर प्लांट्स जो है इन एयर करंट में, एयर करंट में हवा के झोंके में इधर से उधर जो है वो झूलते रहता है, और जिधर जाता है उधर अपने एक क्रीपर्स छोड़ देता है। अब देखा होगा कोई भी क्रीपर प्लांट्स को या कुकम्बर प्लांट्स को देखोगे, उसमें एक वायर की तरह वो लपेट लेता है, ठीक है। तो जिस तरह से वो लपेट लेता है, स्ट्रांगली वो कैच कर लेता है, फिर उसका क्रेपर बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते फिर जहां होता है वो क्रेपर जो है अपने आप को एक धागे के रूप में वो निकाल करके वो अपना सपोर्ट के लिए, वो सरवाइव करने के लिए आगे बढ़ते जाता है, और कुछ दिनों तक वो सरवाइव करता है। इसमें द बेस्ट एग्जाम्पल है आपका फाइसरम। फाइसरम आप देखा होगा, यानी तो आप दूसरा एग्जाम्पल देखा होगा कुकुम्बर प्लांट। प्लांट ये क्रीपर है बच्चों, और जब क्रीपर्स जो है या बीटरवुड, करेला, ये सभी जो देखोगे जब क्रीप करता है, डेवलप करता है, रेसिस्ट करता है, डेवलप करता है, तो इसके आगे से टिप से एक धागे, टिप से एट द टिप ऑफ द क्रीपर्स, वो अंतिम छोर पर जो उसका इंड पॉइंट है, वहां एक धागे की तरह रेशा निकलता है, फाइबर निकलता है। अगर उसको सपोर्ट मिलता है तो ऑटोमेटिकली उसको बाउंड कर लेता है, जिससे कोई उसको हार्म नहीं करे, और एयर करंट भी है तो उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाए। इसलिए हम लोग भी देखते हैं कि अब
कोई भी अगर ऐसा होता है वाटर करंट या एयर करंट, हम लोग सपोर्ट चाहते हैं, पकड़ लेते हैं। अब वाटर में अगर है, अगर जाते हैं तो कोई सपोर्ट मिलता है, पकड़ लेते हैं। एयर करंट है, कोई आंधी तूफान आया तो अगर किसी पोल को पकड़ लेते हैं सपोर्ट के लिए, कहीं उड़ ना जाए। तो उसी तरह से ये क्रेपर प्लांट्स जो है वो अपने सपोर्ट के लिए जो उसके सामने मिला उसी में वो धागे की तरह वो लपेट लेता है बच्चों। और ये जो है आपका एंड पॉइंट नहीं है। और इसके बाद आपका एक पॉइंट है आपका प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोअल। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं बच्चों।